विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री निताई गौरांग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। So today we are going to start 10th chapter. Yesterday we thought of having quiz on 9th chapter, but we were busy in Rath Yatra, so we could not conduct. So after the class I will share the link, so those who have attended all these classes, they can attend the quiz and check their understanding of those three chapters, 7th, 8th and 9th, three chapters. So now we are going to start the 10th chapter, which is opulence of the absolute. So the knowledge of the absolute हम लोगों ने पढ़ा 7th chapter में, फिर 8th chapter attaining the supreme, 9th chapter most confidential knowledge. Now 10th chapter we are going to have opulence of the absolute truth. So we have now understood who is the absolute truth. Krishna is the absolute truth. And what is his opulence, that will be described in 10th chapter. So let us start. I'm going to share the presentation. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So 10th chapter is dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So in 10th chapter, Krishna says that Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Eva Mahabaho Shanu Me Paramam Vacha. So Krishna क्या बोल रहे हैं? Bhuya Eva. Bhuya means again. So 9th chapter में कृष्णा ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज रिवील कर दिया अर्जुन को, बट स्टिल उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं. फिर क्या बोल रहे हैं? भूय एव महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, महाबाहो. भूय मीन्स अगेन, भूय एव महाबाहो, एव मीन्स सर्टेनली, ओ महाबाहो. Paramam vacha, hear my supreme instruction. Now Krishna, in the continuation of 9th chapter, this 10th chapter is in the continuation of 9th chapter only. So Paramam vacha, which Krishna is already in 9th chapter he has described. Again he is going to explain that. Shunu me paramam vacha yatte aham priya manaya, because you are very dear to me, so therefore vakshami hitakame, I am speaking to you. हितकामया means for your good. हित means आपकी भलाई के लिए मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ, ये teachings दे रहा हूँ. So I shall impart to you for your benefit and which will give you a great joy. Yatteham priyamanaya, it will give you great joy. Because you are very dear to. Priya means dear. So because Krishna, Arjuna is very dear to Krishna, so therefore Krishna is going to impart this knowledge again. Bhuya means again. मतलब इसको ऑलरेडी कृष्णा ने एक्सप्लेन कर दिया है. So neither then so this is the first verse which Krishna says in the 10th chapter.
Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. You are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further. Further giving knowledge that is better than what I have already explained. So अब और important और confidential knowledge कृष्णा reveal करने वाले हैं. So और इसके ये knowledge कैसा है? फिर second verse में बोल रहे हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभोम न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम. This is very important verse. In this verse, Krishna says that aham adir hi devanam. I am the source of all the demigods. So even this, in this verse also, Krishna is revealing a great secret, that Krishna is the source of all the demigods. In 7th chapter, we had understood that Krishna says, Aham sarvasya prabhavah, means everything emanates from me. All this material world and spiritual world, everything is coming from Krishna. Now in the second verse of 10th chapter, Krishna says, Name vidu surgana. Sur means demigods, gana vidu surgana. Surgana जो सुर लोग हैं, देवता गण हैं, न मे विदु मुझे नहीं जानते. विदु मीन्स जानना, मे मीन्स मुझे, न मीन्स नहीं. न मे विदु सुरगणा प्रभुअम न महर्षि. और महर्षि जो लोग हैं, ग्रेट सेजेस, वो भी नहीं जानते मेरे बारे में. हायर अंडरस्टैंडिंग जो है कृष्णा की अंडरस्टैंडिंग, वो न तो देवता को पता है, न तो महर्षय सेजेस को पता है. अहम आदिर ही देवानाम, बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ डेमीगॉड्स एंड महर्षिणाम च सर्वशः. अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः. सो मैं देवताओं का और महर्षियों का और सभी लोगों का आदि हूं. आई एम द सोर्स. सो इस श्लोक, इन श्लोकों से जब हम लोग ये श्लोक सुन रहे हैं, भगवद गीता में बार बार कृष्णा ये श्लोक, ऐसे बहुत सारे श्लोक बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स, ऑल द सेजेस, ऑल एवरीथिंग. इसका मतलब कृष्णा जस्ट 5000 साल पहले नहीं आए थे. अगर 5000 साल पहले आए तो क्रिएशन तो हजारों साल, लाखों साल से, करोड़ों साल से. बट कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्रिएशन मेरे से आया है और सारे डेमीगॉड्स मेरे से आए हैं. तो इसका मतलब यही है कि कृष्णा वाज देयर इवन बियॉन्ड, बिफोर दिस क्रिएशन. इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन कृष्णा वाज देयर. आफ्टर क्रिएशन कृष्णा विल बी देयर. So there is no Adi and Ant of Krishna. So in this verse Krishna is saying, neither the host of demigods nor the great sages know my origin. For in every respect I am the source of the demigods and the sages. So Krishna is always the source of the demigods. So जब कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं कि everything is coming from Krishna, so how come Krishna can come? How can Krishna come from anybody? So when we hear Vasudeva, Devaki, they are the parents of Krishna. So this is just a Leela which Krishna is playing. And he is exchanging kind of rasa, Vatsalya ras with his own devotees. So Vasudeva and Devaki of Krishna did a child like Krishna. So therefore in Satya Yoga, Vasudeva and Devaki, they performed severe penances and austerities for thousands of years. Because when Brahma created them, they were progenitors. Their Vasudeva and Devaki, their name was Sutapa and Prishni. Sutapa and Prishni, ये वसुदेव देवकी का नाम था. तो ये जो ब्रह्मा जी के बेटे थे, ये प्रोजेनेटर्स थे. सो ब्रह्मा जी ने इनको क्रिएट किया. यू डू प्रोजनी, बट इन्होंने प्रोजनी नहीं की. They underwent severe austerities and penances before doing progeny. So it is very important, not that you produce progeny like cats and dogs. So demoniac class will take birth. Like in animal kingdom, animals take birth. Similarly, in human kingdom also, animals like people will only take birth. If before progeny, we are not doing a proper sanskar, or we are not, Prabhupada has recommended that in Kali Yuga those sanskars, that is not possible. So
We should chant Hare Krishna Mahamantra and find out a right time so that when the child, the new baby who is going to enter in the womb of the mother, he is divine. Otherwise, at wrong time, if we have intercourse and if the mother is pregnant, then the child will be of demoniac qualities. So Krishna appeared before through Vasudeva and Devaki. So Vasudeva Devaki were Prishni and Sutap, and they underwent severe austerities and penances. And when the Lord was pleased, then they asked from the Lord, "Oh Lord, please bless us that we get a son like you." Now, who can be son like Krishna? Nobody, right? So then Lord only has to appear as the son of Sutapa and Prishni Garbha. And then Lord was so pleased that Lord blessed that in 3 births I will appear through you and will become your child. So first birth was when Lord appeared as Prishni Garbha through Sutapa and Prishni. In the second birth, Sutapa and Prishni. Sutapa became Kashyap Muni and Prishni became Aditi. So Kashyap Muni and Aditi, from them Lord again appeared as Vaman Dev. And we know that pastime Bali Maharaj. And third time, Sutapa and Prishni, they appeared as Vasudeva and Devaki. And through them, who appeared? Krishna. So Prishni Garbha, Vamanadev and Krishna, all are Lord only. The different form of the Lord, only Krishna is there. They are Krishna only, they are the Supreme Lord only, Narayana, having different forms. So Lord is appearing through the devotees to bless them, to have Vatsalya Ras. Now, having said that Lord takes birth, it doesn't mean that Lord was created. Nobody can create the Lord. Like we can see here in second verse, neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin. For in every respect, I am the source of the demigods and the sages. So Lord is source. Nobody is the source of the Lord. And then in the third verse, Krishna says, Yo mam ajam anadim cha veti lok maheshwaram asamunho samartesu sarv papai pramuchate. Yo mam ajam anadim cha, जो मुझे यो माम जो मुझे जानता है, अजम की लॉर्ड इज अनबॉर्न एंड अनादि मीन्स उनका कोई आदि, nobody has caused the Lord. Lord Krishna has no cause, therefore he is absolute truth. जैसे हम लोगों ने 7th चैप्टर में डिस्कस किया था, absolute truth means nobody has caused that truth. Any truth which is caused by any other truth, then this truth will not be the absolute truth. Absolute truth means which was present in the past, which is present in the future, which will be present in the present, which will be there in the future also. So means eternally it is existing. Nobody has caused that, and that is only Krishna. So Krishna is the cause of all causes. Nobody caused Krishna. So therefore Krishna is absolute truth. So अगर किसी को absolute truth बोलना है तो किसको बोल सकते हैं? जिसका कोई cause नहीं है. And who is that? Krishna is that. जिनका कोई cause नहीं. यहाँ पर third verse में कृष्णा बोल रहे हैं, He who knows me as the unborn. Yo mam ajam. Ajam means unborn. Anadim cha. Anadi means जो जिसका कोई आदि नहीं हो. Anadi. So Krishna is saying I am Anadi. And ajam. And वेति. वेति means जानता है. लोक महेश्वरम. और जो मुझे सारे लोगों का महेश्वर समझता है. ईश्वर मतलब कंट्रोलर. महा ईश्वर मतलब ग्रेटेस्ट कंट्रोलर. जो मतलब ईश्वरों के भी कंट्रोलर है, उसको महेश्वर बोलते हैं. जैसे हम लोग सुनते हैं देवों के देव महादेव, है ना. सो भगवान शिव महादेव है, लेकिन महेश्वर नहीं हो. कृष्णा इज महेश्वर मीन्स सारे ईश्वरों के भी महा ईश्वर वो है भगवान कृष्ण. सो इस श्लोक में थर्ड वर्स में कृष्णा बोल रहे हैं, यो माम, जो लोग, यो मीन्स जो, यो माम मुझे, अजम अनादिम च वेत्ति. वेत्ति मीन्स जानते हैं. जो लोग मुझे जानते हैं क्या? अजम अनबॉर्न, कृष्णा अनबॉर्न है.
अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, वो बिगिनिंगलेस है। और यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, और जो मेरे बारे में क्या जानता है कि कृष्णा लोक सारे लोगों के महेश्वर हैं। और अगर ये जान लेता है तो असमूढ़ो, उसको बोलते हैं असमूढ़ा। सो मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, रास्कल, इडियट जिसको बोलते हैं। इडियट मतलब मूर्ख, मूढ़ा संस्कृत में बोलते हैं। सो भगवान कृष्ण 9th चैप्टर में क्या बोले थे? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। याद करो श्लोक 9th चैप्टर वर्स नंबर 13 या 14। उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ा लोग हैं, जो इडियट्स हैं, वो मुझे नहीं जानते। और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, जब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं अजम हूँ, मीन्स अनबॉर्न हूँ, बिगिनिंगलेस हूँ, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, उनको क्या बोल रहे हैं? असमूढ़ो, मतलब वो मूढ़ा नहीं है। असमूढ़ा मीन्स दे आर टॉप मोस्ट पीपल। मूढ़ा मतलब इडियट्स, समूढ़ा मतलब महा इडियट, और असमूढ़ा मीन्स उसका अपोजिट। मीन्स सुपरलेटिव डिग्री का जो मूढ़ा होता है उसका अपोजिट करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का जो टॉप मोस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। सो जो कृष्णा को ये समझता है, ही इज असमूढ़ मीन्स ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट। स मीन्स वह, वो ऐसा व्यक्ति असमूढ़ हो। और समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, एंड जस्ट बाय नोइंग दिस यू विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द सिन। सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो कृष्णा को अगर ये कोई जान ले, कोई जान ले, बस जानने के लिए बोल रहे हैं, या कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं वो मेरी भक्ति करे। भक्ति अगर करे हो तो मतलब उसको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो पता नहीं उसको क्या मिल जाएगा। सोचो आप, यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं अगर कोई इतना जान ले बस कृष्णा के बारे में कि कृष्णा अनबॉर्न है, बिगिनिंगलेस है और सुप्रीम लॉर्ड है पूरे लोगों के, सारे प्लैनेट्स के, तो ऐसे आदमी जो है वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर ऐसे आदमी पापों से मुक्त हो सकते हैं तो जो कृष्णा की भक्ति कर रहा है उसके साथ क्या होने वाला है, उसको क्या मिल जाएगा? करेक्ट है ना? वी कैन नॉट इमेजिन। So therefore, those who are involved 24 hours in the service of Krishna, those who are chanting the name of Krishna, those who are always thinking of Krishna, they are those who are preaching about Krishna, the devotees. How great, how greatly fortunate they are, how greatly devoted they are to the Lord, how dear they are to the Lord. We cannot imagine. Correct? इस तीसरे श्लोक से यही तो अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना कि भैया अगर जान लेने से सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे तो अगर हम भगवान की भक्ति करें तो क्या हो जाएगा। और जो अगर भक्ति नहीं कर रहा, दूसरों को भक्ति भी करा रहा है, जो भक्त बना रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, जो प्रीचिंग कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, जैसे प्रभुपाद हुए, भक्त हुए, उनका क्या ले, उनको क्या मिलेगा? तो उनको क्या मिलेगा? उनको भगवान खुद मिल जाएंगे। सो भगवान से बड़ा कुछ है क्या? नहीं है ना। सो ये अंडरस्टैंडिंग है। So first 3 verses of 10th chapter is very beautiful verses, and you can remember, not if not all the 3, at least second verse and this third verse. Okay, उसके बाद कृष्णा क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बीच में 3-4 श्लोक और आते हैं जिसमें कृष्णा बता रहे हैं कि आप अगर 10th चैप्टर में जो अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं उसको समझ लोगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, आप लोग अपने से इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। कृष्णा बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Just imagine what Krishna has said here. कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे से आ रहा है। क्या क्या? इतने सारे लिस्ट दे दिया कृष्णा ने। सो यहाँ पर
ये आप पढ़ लेना, इसको मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बट आप जस्ट पढ़ लेना. नाउ आई विल कम टू द मोस्ट important part of the 10th chapter, which is called Chatushloki Bhagavad Gita. 4 important verses of Gita, that is from 10.8 to 10.12. तो जैसे फर्स्ट वर्स में कृष्णा ने क्या बोला कि भूय एव महाबाहो शृणु में परम वचन. फिर से सुनो अर्जुन, मेरा परम वचन जो सुप्रीम वचन है उसको भूय मीन्स अगेन, भूय एव मीन्स निश्चित रूप से मैं बोलने जा रहा हूं, आप सुनो मेरा परम वचन. तो वो परम वचन क्या है यहाँ बताने वाले हैं. ये 4 श्लोक में कृष्ण बोलेंगे. तो इसलिए इस 4 श्लोक को क्या बोलते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता. ये 4 श्लोक तो याद करना ही है, इसमें कोई छूट नहीं है. दूसरा और तीसरा याद कर लीजिए. बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड वर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आप अच्छा, जब हम श्लोक याद करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को प्रीच करेंगे, वो तो है ही, ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज देयर. व्हेन यू आर प्रीचिंग, यू आर टॉकिंग टू समवन, you can quote, because you have to establish that how Krishna is supreme, how Krishna is unborn, how Krishna is the Lord of the universe, how everything is coming from Krishna. Even demigods don't know about Krishna. यहाँ पर 9.10.2 हमने देखा ना, न मे विदु सुरगणा. कृष्णा बोल रहे हैं ओपनली कि ये जो देवी देवता ये भी मेरे बारे में नहीं जानते. न मे विदु, विदु मीन्स जानना, न मीन्स नहीं जानना, विदु मीन्स सुरगणा, जो सुर हैं, जो मीन देवता लोगों, वो भी भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते. तो जब आप किसी को प्रीच कर रहे हैं तो ये श्लोक कोट कर सकते हैं. लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये श्लोक कहाँ काम आते हैं, हमारे खुद के कन्विक्शन डेवलप करने के लिए. कभी कभी हम खुद डाउट में आ जाते हैं, कृष्णा की भक्ति क्यों करनी, कृष्णा कैसे सुप्रीम है, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग को देख रहे हैं और लोग वर्शिप कर रहे हैं. तो कभी कभी अगर हम राइटली सिचुएटेड नहीं है तो हमारे अंदर भी डाउट क्रिएट हो जाता है. So to destroy those doubts, these verses are very important to memorize. So you can immediately remember and go and read that. Immediately you will be convinced again. So therefore we ask to remember these verses. Okay, now we are going to discuss these 4 important verses जिसको याद करना ही है आप लोगों को. इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता 10.8 to 10.12. ऐसे चतुश्लोकी भागवतम है. भागवतम में 4, पूरे भागवतम को अगर समराइज करें तो 4 श्लोक में वो समराइज होते हैं, उनको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम. वैसे पूरे भगवद गीता को अगर समराइज करें तो ये 4 श्लोक में समराइज होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता. ये जो 10.8 to 10.12 है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्स है. तो पहला वर्स विल अंडरस्टैंड. अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः. तो इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो. अहम मीन्स मैं, सर्वस्व मीन्स सब कुछ, प्रभो मीन्स इमिनेशन, मतलब मैं, मेरे से ही सारे जो भी क्रिएशन सब आ रहे हैं. Everything is emanating from me. I am the source of everything. ये इसका मतलब मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरे से सब कुछ आ रहा है. I am the source of all spiritual and material worlds and everything emanates from me. मत्तः means from me, सर्व means सब कुछ, प्रवर्तते means निकल रहा है. सब कुछ कृष्ण से ही निकल रहा है. साइड में आप फोटो भी देख सकते हैं. इवन विष्णु भगवान भी कृष्ण से ही आ रहे हैं. हम लोग वो श्री कृष्णा वाला सीरियल देखे रामानंद सागर का, है ना, उसमें ये वाला फोटो, नीचे वाला फोटो हम सब लोग देखे हैं, राइट. जैसे ही वो एपिसोड स्टार्ट होता है श्री कृष्णा, तो उसमें वो नीचे ये वाला फोटो दिखाते हैं जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं. लेकिन वो श्री कृष्णा रामानंद सागर वो पूरा फोटो नहीं दिखाते. ये पूरा फोटो देखो, ये कंप्लीट फोटो जो आप देख रहे हैं, विष्णु के ऊपर कृष्णा है, न कि कृष्णा विष्णु से आए हैं. तो रामानंद सागर ने दिखाया तो श्री कृष्णा, लेकिन रामानंद सागर को खुद को नहीं पता है कि कृष्णा इज द सोर्स एंड विष्णु इज एक्सपेंशन. इवन रामानंद सागर को भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि भैया
विष्णु से आए हैं कृष्णा। तो ये जो नॉलेज है ना बहुत सीक्रेट है, इसीलिए इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया है। इसलिए कृष्णा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोल रहे हैं, क्योंकि ये इवन डेमी गॉड्स को भी नहीं पता। तो ये ऑर्डिनरी रामानंद सागर या लोगों को कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो हमें कैसे पता चला? ओनली थ्रू प्योर डिवोटीज वी कैन अंडरस्टैंड। दोज प्योर डिवोटीज आर नॉट ऑर्डिनरी, प्लीज अंडरस्टैंड। पूरे ब्रह्मांड में को कभी कभी एक प्योर डिवोटी अवतार लेता है बस। प्योर डिवोटी जितने, जैसे भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ, उसे शुद्ध शुद्ध भक्त जो प्योर डिवोटी जैसे आचार्य प्रभुपाद है, इनके दर्शन उतने ही दुर्लभ है जैसे भगवान कृष्ण के। तो जिनको ऐसे महान व्यक्तित्व जैसे श्रीला प्रभुपाद के दर्शन हो गए और उनका संग मिल गया, उनका उनके थ्रू ज्ञान समझने को मिल गया, तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट souls also. These souls also are very fortunate, those who get the opportunity to get the knowledge from such pure devotees. So हम लोगों को ये नॉलेज क्यों पता चल रहा है? क्योंकि हम श्रीला प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है। अदरवाइज हम कोई बड़े 30 मार खान या कोई बड़े स्कॉलर फिलोसोफर नहीं है कि हमें ये रिवील हो गया। नहीं, ये तो प्रभुपाद की अनुकंपा है, उनकी कॉजलेस मर्सी है। हमने कोई कॉज नहीं किया, हमने कोई ऐसी चीज नहीं की कि प्रभुपाद ने हमें ब्लेस किया। विदाउट कॉज प्रभुपाद ब्लेस्ड अस। जैसे स्कूल वगैरह में आप कुछ करें, घर में कुछ करें, तो पेरेंट्स खुश होते हैं, तब आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना? कुछ आप करोगे तब। और अगर आप मान लो एकदम निठल्ले हो, घूम रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो घर वाले आप कुछ देंगे? डंडे देंगे और कुछ नहीं देंगे, पिटाई होगी। बट प्रभुपाद हमें कोई कॉज नहीं किया, हमने कॉजलेसली प्रभुपाद ने हमें ये दिया है ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इसलिए इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया। इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण कौन है। इसलिए 10.2 में कृष्णा ने क्लियर कर दिया है कि न मे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षया। इवन ग्रेट ग्रेट सेजेस एंड डेमिगॉड्स आर bewildered, इवन दे कैन नॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड हु इज कृष्ण। तो रामानंद सागर को भी नहीं समझ में आया, तो इसलिए उन्होंने ये फोटो को काट दिया, आधे से दिखाया उन्होंने, नीचे वाला केवल दिखाया, ऊपर वाला दिखाया नहीं कि भाई कृष्णा गोलोक वृंदावन में है और उनसे विष्णु आ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। सो फ्रॉम कृष्णा विष्णु इज एक्सपैंडिंग, नॉट, इट इज नॉट अदर वे अराउंड। विष्णु से कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या विष्णु छोटे हो गए कृष्ण से? इन वन सेंस या, बट इन अनदर सेंस नो। therefore it is called अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जिस चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अचिंत्य मीन्स अचिंत्य, इनकंसीवेबल, आप समझ नहीं सकते इसको कि वो एक भी हैं, अलग भी हैं। कृष्ण एंड विष्णु एक भी हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अलग हैं। क्यों अलग है? कि कृष्णा सोर्स है, विष्णु एक्सपेंशन है। और कैसे एक है? एक है क्योंकि दोनों एक्सपेंशन है, मतलब विष्णु इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। जैसे इसका बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि एक कैंडल लो आप, दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा, यस्त्रादि गे वही च विष्णु तया विभाति, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दीपाचरे वही दशांतरम अभ्युपेत्या, दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा, यस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं गोविंद जो है वो आदि पुरुष हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो ब्रह्मा जी भी यही सेम चीज बोल रहे हैं, गोविंद मादि, गोविंद जो है आदि पुरुष हैं। और जैसे एक कैंडल लो आप और उस कैंडल से 50-60 कैंडल जलाओ आप, तो क्या जो बाकी कैंडल है उनकी इंटेंसिटी कम होगी जो ओरिजिनल जो पहली कैंडल है उससे? नहीं, हाँ, पूरी सारे कैंडल्स की इंटेंसिटी सेम होगी। इवन जिस कैंडल से हमने जलाया बाकी कैंडल, जिस कैंडल जला इसकी भी इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी बाकी कैंडल्स की। बट स्टिल दिस कैंडल इज द ओरिजिनल कैंडल जिससे हमने सारे बाकी 40 कैंडल्स को लिट किया। लेकिन इंटेंसिटी में कोई अंतर नहीं है, सारे कैंडल सेम इंटेंसिटी के साथ लाइट इमिनेट कर रहे हैं, राइट? उसी तरीके से ये ब्रह्मा जी एनालॉजी दे रहे हैं। तो कभी कभी जब हम एनालॉजी देते हैं तो लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं अरे ये तो अपने से कुछ भी बना लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं अपना अपना जो है अंडरस्टैंडिंग को प्रूफ करने के लिए। नहीं, प्रभुपाद की ये एक इतनी अच्छी खूबी है, ब्यूटी है कि प्रभुपाद ने, इवन हम भी, कोई एनालॉजी अपने से क्रिएट नहीं की है। ये शास्त्र में दिया हुआ है एनालॉजी,
और उन्हीं एनालॉजी को प्रभुपाद ने और भक्तों ने उस तत्व को, सत्य जो ट्रुथ है उसको समझाने के लिए वो प्रेजेंट किया है। तो जैसे ये कैंडल वाली एनालॉजी जब हम देते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा तो अपने से कुछ भी आप बना लेते हैं। नहीं, ये हमारा नहीं है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यस्ताद्रिगे वै च विष्णु तदा विभाति दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। जैसे दीप है, दीप को जलाओ तो सारे दीप के जो धर्म है समान होंगे, इंटेंसिटी जो है इक्वल होगा। उसी तरीके से कृष्ण से बहुत सारे एक्सपेंशन हो रहे हैं। बलराम जी भी कृष्ण के एक्सपेंशन है। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम, एंड फ्रॉम बलराम फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन कम्स। क्वाड्रपल मीन चतुर्व्यूह, क्वाड्रपल बोलते हैं उनको। तो बलराम जी से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये 4 एक्सपेंशन होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न जो कृष्णा के बेटे और ग्रैंडसन, इनकी बात नहीं हो रही, ये अलग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चारों विष्णु हैं, विष्णु तत्व है, नारायण है, ये चारों बलराम जी से आते हैं। और बलराम जी कृष्णा के फर्स्ट एक्सपेंशन, इमीडिएट एक्सपेंशन है। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपेंशन में जो संकर्षण है वो नारायण में एक्सपेंड होते हैं। ये सब वैकुंठ जगत में ही हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और नारायण जो है वो फिर से उनसे सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन होता है। सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन फिर से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और जो सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन के संकर्षण है उनसे महाविष्णु का एक्सपेंशन होता है। ये जो लेटे हुए हैं आप देख रहे हैं सामने, ये महाविष्णु के बॉडी से पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो एक्चुअली ब्रह्मांड को क्रिएशन करने वाले कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु जो है संकर्षण के एक्सपेंशन है। और कौन संकर्षण? सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन जो संकर्षण है। और कृष्णा तो भूल जाइए, कृष्णा तो कितने ऊपर हैं, कृष्णा तो बहुत, ही इज द ओरिजिन। और महाविष्णु कितने नीचे हैं। तो हमें क्या जनरली केवल यहाँ तक दिखाया जाता है, बताया जाता है, इसलिए हमें लगता है कि विष्णु से ही सब आ रहे हैं। बट एक्चुअली महाविष्णु भी कहीं से आ रहे हैं, बलराम जी से, मतलब सब लोग आ रहे हैं। और बलराम जी भी कृष्ण के एक्सपेंशन है। सो ओरिजिनल पर्सन गोविंद है, कृष्ण है, वो यहाँ कृष्णा बता रहे हैं। तो जो श्री कृष्णा रामानंद सागर ने दिखाया है, आधा दिखाया है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं है कि भाई कृष्णा कैसे सुप्रीम है, कैसे ओरिजिनल पर्सन है, क्योंकि उन्होंने प्योर डिवोटी शिला प्रभुपाद से नॉलेज रिसीव नहीं किया, उनसे शिक्षा नहीं ग्रहण की। इवन दो जो कृष्णा एपिसोड है उस भी उन्होंने पूरा नॉलेज प्रभुपाद से नहीं लिया, इसलिए उनको भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण है कौन। इसीलिए कृष्णा ने 10.2 में बोल दिया, पहले ही ये नॉलेज देने से पहले ही बोल दिया कि इवन देवता गण भी, ऋषि मुनि भी ये ज्ञान नहीं समझ पाए हैं, ये जो मैं देने जा रहा हूं। तो ये नॉलेज भगवद गीता में है, लेकिन लोग समझ क्यों नहीं पाते? इसीलिए तो इसको बोलते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज तभी समझ में आता है जब हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, अदरवाइज पढ़ के भी हमें समझ में नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज, ये भगवद गीता से लोग बाकी जो मायावादी लोग हैं या जो बाकी लोग हैं वो नहीं पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। गीता प्रेस की भगवद गीता सबके घर में है, लेकिन सब गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण क्या है, सोर्स ऑफ ऑल एवरीथिंग। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो फिर थर्ड लाइन क्या बोल रहे हैं? इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये समझ जाता है और ये मानकर भजता है मुझे, भजन्ते माम बुधा, ही इज कॉल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, एनलाइटेंड पर्सन। बुधा मीन्स इंटेलिजेंट। और वो कैसे भजता है? भाव, पूरी भाव, फीलिंग के साथ, समन्विता विद ऑल हिज फीलिंग्स एंड हार्ट्स, ही वर्शिप मी इन डिवोशनल मूड। तो ये पहला चतुश्लोक की भगवद गीता, फर्स्ट वर्स ऑफ चतुश्लोक की भगवद गीता। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. तो जो ये समझ जाता है वही केवल भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति में इंगेज होता है, with all the hearts, पूरी दिल से, पूरा भाव से वो भगवान की वर्शिप करता है। अदरवाइज वो कंफ्यूजन में रहता है, डाउट में रहता है, वो फीलिंगली भगवान कृष्ण की वर्शिप नहीं कर पाता। फिर दूसरा श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं हाउ टू डिराइव ग्रेट सैटिस्फैक्शन एंड ब्लिस। सो कृष्णा बोल रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये जो डिवोटीज होते हैं सब कुछ छोड़ के मूवी नहीं देखते, ये बाहर नहीं खाते, कुछ नहीं खाते बाहर, उल्टे सीधे काम नहीं करते, है ना, स्मोकिंग नहीं करते, इनकी लाइफ में क्या रस है, क्या मजा है। तो यहाँ कृष्णा बता रहे हैं कि भाई भक्तों के जीवन में क्या मजा है। The thoughts of my pure devotees dwell in me. So they are, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। और their lives are surrendered to me. So they have surrendered to Krishna and they derive great satisfaction. उनको बहुत आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है कब? And bliss enlightening one another. So when the great devotees they discuss about me, they derive great satisfaction and conversing about me. So devotees derive great satisfaction and bliss by discussing about Krishna, by conversing about Krishna, by explaining about Krishna among themselves. So when the devotees they talk about Krishna among themselves, they derive great satisfaction. क्यों satisfaction मिलता है? Because अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन what is our constitution ये अगर हम समझे, so we all are actually part and parcel of Krishna, correct? Krishna has spoken this in 15th chapter verse number 7 where Krishna says अहम ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो सारे जीव भूत है ये मेरे अंश हैं, सनातन, इटरनली दे आर माई अंशा, मीन्स पार्ट एंड पार्सल। So this is our constitution, this is our makeup. We are made like that we are parts and parcels of Krishna. Now Krishna is root, we are like branches. So अगर ब्रांच को खुश रहना है तो क्या करना है? ट्री के रूट में पानी डालना है ना। ट्री के रूट को अगर सेटिस्फाई कर दिए तो ब्रांच अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ब्रांच को सेपरेटली सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। अब ब्रांच को हरा भरा रखना है तो ब्रांच में पानी डालो तो क्या हरा भरा होगा? नहीं, पानी डालना होगा रूट में। रूट अगर सेटिस्फाई है तो सारे ब्रांचेस सेटिस्फाई होंगे और सारे ब्रांच फल भी देंगे, फूल भी देंगे, फ्लरिश भी करेंगे। सो अगर ब्रांच आते हैं, फल फूल दें, फ्लरिश करें, आगे बढ़े, तो उनको रूट से कनेक्टेड होना और रूट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो रूट शुड बी नरिश्ड प्रॉपर्ली। और रूट हमारे के उसी तरीके से हमारे केस में हम लोग पार्ट एंड पार्सल, वी आर लाइक ब्रांचेस ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा इज द रूट। सो जब हम कृष्णा को वर्शिप करते हैं, जब हम कृष्णा को सैटिस्फाई करते हैं, जब हम कृष्णा के बारे में बात करते हैं, सो कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी बाय आवर एक्टिविटी। व्हेन वी प्रीच अबाउट कृष्णा, कृष्णा इज हियरिंग। डोंट थिंक दैट व्हेन वी आर प्रीचिंग कृष्णा इज नॉट हियरिंग। Krishna hears, Krishna attentively hears that this devotee is speaking about me. He is preaching about me. He preached so many people today too about me. So Krishna becomes so happy by you. So because by you Krishna became so happy, so Krishna is the root and you are the branch. So root जब satisfy हो गया तो branch अपने आप satisfy हो जाएगा. So because Krishna became satisfied, so naturally we also become satisfied and we achieve bliss. So this is the principle how a devotee derive great satisfaction. Therefore devotees are greatly satisfied because they know the signs. Now outside people, they are also branches, they are also part and parcel of Krishna, but they are not able to realize this fact. So they are independently trying to become happy and therefore they are not able to become happy. They are always dissatisfied. वो एक ईगो बस है कि सेंस ऑफ ईगो सैटिस्फैक्शन है बस, और रियल सैटिस्फैक्शन नहीं है। आपको लगेगा कि दे आर सैटिस्फाइड, लेकिन जब आप उनकी दुखती नस पे हाथ रखेंगे ना तो आपको बताएंगे कि यार लाइफ बहुत सफरिंग है। वो सबको रिवील नहीं करेंगे, सबको इंस्टा सोशल मीडिया में और सबको दिखाएंगे कि दे आर मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, लेकिन सडनली हम देखते हैं ना अचानक सुसाइड कर लिया। अरे ये तो इंस्टाग्राम पे अभी बड़ा अच्छा पोस्ट डाला, अचानक सुसाइड कैसे कर लिया? तो ये जस्ट दिखावा है। दिखावे का चेहरा अलग है, अंदर का चेहरा अलग। अंदर लोग सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉलो हैं, दे आर ग्रेटली डिससैटिस्फाइड। लेकिन जो कवरिंग मास्क लगा रखा है वो एक आर्टिफिशियल फेस का मास्क लगा रखा है। लोग दिखा रहे हैं समाज को कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि समाज को बता नहीं सकते ना कि हम दुखी हैं।
तो ये प्रॉब्लम है. But all are dissatisfied because they are not serving Krishna. But here in this verse Krishna is revealing the secret how we can be happy. जैसे फोटो में आप देख सकते हो डिवोटीज लगे हुए अलग अलग एक्टिविटीज में, they are differently engaged, but because they are always thinking of Krishna, they are chanting Krishna, so therefore they are all happy. So this is the second verse of Chatusloki. You can see the video also here. How devotees, they are so happy. These hippies, they were earlier, they were most dissatisfied, most distressed people, but now they are most happy people. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hari Bol. See how Prabhupada was so happy, blissful, and devotees are also so happy. So here we saw that how devotees, they become, these were foreigners, all are foreigners. Earlier they were most dissatisfied people, but now they are most happy because of Prabhupada. So only pure devotee can make the whole world happy. Otherwise nobody has got power. Nobody has got power to make others happy. Only शुद्ध भक्त जो परम वैष्णव है, जो भगवान का बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, वही केवल पूरी दुनिया को खुश कर सकता है. अदरवाइज हम खुश नहीं कर सकते, हम सब लोग सफर करते रहे. ओके, नेक्स्ट थर्ड वर्स ऑफ चतुश्लोकी भगवत गीता. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते. Here in this verse Krishna is revealing a great secret. Krishna is saying I give the intelligence. तो तेषाम, जो लोग सतत युक्ता नाम, सतत मीन्स ऑलवेज, युक्ता नाम मीन्स लगे हुए हैं, भजताम भजने में, प्रीति पूर्वकम मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करने में लगे हुए हैं जो लोग, ददामी बुद्धि, उनको मैं बुद्धि देता हूं. जैसे हियर कृष्णा इज सेइंग दैट आई गिव यू द इंटेलिजेंस. सो हु गिव्स द इंटेलिजेंस? कृष्णा गिव्स द इंटेलिजेंस. सो व्हेन वी वर्शिप कृष्णा satat yukta naam, when we chant Krishna's name, when we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So dadami, Krishna is saying dadami, I will give you intelligence, and by you, not this materialistic intelligence. Krishna will give you transcendental intelligence so that you can go back to Krishna. So how to manage our life in such a way that we don't get entangled and we go back to Krishna? This intelligence Krishna gives when we are engaged in the loving devotional service of Krishna. प्रीति पूर्वकम, जब हम लव से, लव एंड अफेक्शन के साथ भगवान की सेवा करेंगे. ऐसा नहीं कि मैकेनिकल सेवा.
प्रीति के साथ सेवा करनी है, मतलब बहुत लव प्रेम से भगवान की सेवा करनी। प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भगवान को भजना है। भजताम प्रीति पूर्वकम। और ददामी, फिर भगवान ददामी में देंगे बुद्धि योगम। तो बुद्धि योग, बुद्धि योग क्या होता है? बुद्धि योग मतलब इंटेलिजेंस जो कि हमें भगवान से कनेक्ट करे। ऐसा इंटेलिजेंस जो हमें भगवान से दूर ले जाए वो बुद्धि योग नहीं है, वो कुबुद्धि योग है। क्या हो? कुबुद्धि, वो बुद्धि नहीं। बुद्धि योग मतलब जो भगवान से हमें जोड़े, वही रियल बुद्धि है। और ये नमाम उपेसो, बाय दिस वी गो बैक टू कृष्णा, बुद्धि योग फॉलो कर। एंड लास्ट वर्स ऑफ चतुश्लोकी भगवत गीता, कृष्णा सेज आई डिस्ट्रॉय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज कृष्णा इज सिटिंग इन आवर हार्ट। देखो कैसे गद्दी पे भगवान बैठे हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। तो ऐसे भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भारत भाषुता। आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम। सो जो डिवोटी होते, कभी कभी we come to Krishna but we don't have complete understanding about Krishna, but we have started chanting Hare Krishna. Don't worry, you just keep chanting Hare Krishna. One day you will see, by chanting Hare Krishna you will be enlightened. कभी कभी आप देखे होंगे ना इलिटरेट पर्सन, उनको ज्यादा फिलॉसफी वगैरह नहीं पता, लेकिन ये बहुत हाईली कन्विंस्ड है वो लोग कि कृष्णा परम पुरुषोत्तम है, भगवान की सेवा करनी, ठाकुर की सेवा करनी। जैसे अपने घरों में हम देखते हैं, हमारे जो दादा लोग हैं और एक जो लोग हैं, पर उनको ज्यादा फिलॉसफी नहीं पता, लेकिन दे आर सो determined in service of Krishna. They will every day chant Hare Krishna 16 rounds. Every day they will go to temple. They have rules to follow. Particularly they follow every rules. है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सो आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम, क्योंकि कृष्ण हमारे हार्ट में है, सो कृष्णा डिस्ट्रॉय दी ऑल इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस जो हार्ट में है, जो भी अज्ञान है वो सब डिस्ट्रॉय करते हैं भगवान। नाश्यामी, नाश कर देते हैं, आत्म भावस्तो, ज्ञान का दीपक जलाते हैं और सारे अज्ञानता को नाश कर देते हैं। तो कृष्णा यहाँ पर इस श्लोक में ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चतुश्लोकी भगवत गीता यहाँ पर डिस्कस किया। कल अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया। सो दीज 4 वर्सेस यू ऑल कैन रिमेम्बर वेरी नाइसली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसमें कृष्णा ने बहुत अच्छे से सारी चीजें रिवील की है। आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ना और थोड़ा परपोर्ट्स भी पढ़ेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होगी। ओके, सो नाउ विल stop the class, today's class. Thank you very much. Hare Krishna. Now tomorrow we'll continue. Acha, I'll share on the WhatsApp group the quiz link of our 7th, 8th, 9th chapter. All of you please attend the quiz. Okay? Hare Krishna. So we'll stop. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.